morning, everyone. I am very glad to welcome you all to our wellness medium, the Utthaan. Today, we are back to learn being genuinely happy. We are into the second session of it. The speaker for today's session is Ramprakash Bhai. He is a professional civil engineer and owns an engineering consulting firm in New York. He has been practicing Raj Yoga meditation for the last 48 years and applies it in professional and his own personal life too. He is a survivor of 9/11 terrorist attack. He was on 64th floor of World Trade Center, New York on the same day in 2001 when the plane hits the Twin Tower. He came out of the building just 5 minutes before it collapsed. He overcame many of his own physical problems and helped many people in the time of this crisis, which has happened there, which has affected many people mentally, emotionally. He had a unique positive experience in that, and because of that he was trying to help others. He helped himself and did experience fear, anger and helplessness. He's a great personality with us today to take the session and share his learnings and experiences of his life. Now I request Deepika ma'am to welcome him. Shanti, Ramprakash Bhaiji, it is indeed a pleasure to have you today with us on this session on genuinely being happy. Hearing your talk this morning, you have so much to share, so I won't take more of your time. And I'm really happy that today the Jindal family who's attending this session will gain lots of benefit from what you have to speak and share and your experiences. Thank you so much for being here, giving your time. We're looking forward to your session. Thank you. Thank you so much, Deepika and Pushpanjali. Yes. Thank you so much. Actually, it is my pleasure to be with all of you. So, मेरे को question होता था जैसे we talk in English or Hindi, which one will be the preferred language? So, because one thing I can tell, when we are in America, we all talk in English, everything is in English, but whenever we find our own people, so then we talk in Hindi, but there are many times international, some audience too, then we can talk in English. I think everybody understands Hindi, Bhaiji, so you can speak in anything you feel comfortable. So mixture, okay, English. So nice to be here. Just to let you know that I'm a civil engineer and I connected with the Brahmakumaris when I was 21 years old. And I have to tell that I was a spoiled one. Like many times we get spoiled when we go to college. In our family, we used to have very much not having even onion, garlic or anything. So, but when I went to the college, I started eating everything, non-vegetarian food and drinking, smoking, and also not paying attention to studies. Somehow I became an engineer. But somehow or another, when I took the path of spirituality, I started to do meditation. So what happened that within 1 week, I was able to get rid of all my bad habits. I became vegetarian, drinking, smoking, everything I had given up. And I was amazed that how that could be possible. People take sometimes years to get rid of. So how that could be possible that I was able to get rid of all the bad habits in 1 week. But being an engineer, I always believed in the process, that once I understand the process, if I can change this much, I can change this much too, I can change this much too, and I can change this much too. So this is where my profession also became like, I say engineering, but I understood the value of love, happiness, peace. And actually I started to deal with that when we experience love in our life, we can give up so many things for the love of other people.
Many times when I love somebody, I could do always extra work for that person and still I don't feel anything bad about it. And you might have even experienced, you could be totally exhausted and tired when you go home, and you are thinking that you will just go home and take the sack. You will not do anything at home, but your little one is waiting for you and telling, Mom, Dad, I'm so happy you are here. Could you please do this thing for me? It will take you only 2 hours. And what's your condition at that time? I am totally exhausted. How can I spend 2 hours doing extra work? But you cannot disappoint the child. And then you start to do that work. It brings the smile on child's face, and you also feel very happy. And actually your tiredness also goes away. Do you have that kind of experience? I'm sure we all have that kind of experience. Totally tired, but totally all of a sudden tiredness is gone. Question is there that 2 hours of physical energy come from? And can I say that was the energy of love? So we can say love generates energy in the body. And we also know when we are happy and enthusiastic, we can sleep only 4 hours. Still, we will get out of the bed full of energy. And when I'm sad or depressed, I could be sleeping 8 hours and still I will be tired. I'm sure that we also have that experience. So that means happiness generates energy in the body. So I was always working. We all are hungry of love. Is it true or not? And second thing is, because that is our really, nutrition. Love is a healthy nutrition. Happiness is our nutrition. We say, now there is no diet as good as happiness. So actually happiness, lot of things get resolved. Because if we really think our ultimate goal in life, you can take anything. Our ultimate, everything boils down to happiness, that we want to be happy. Why I want better job? So that I will make more money. Why I want more money? Then I will be having all the gadgets I need. All my requirements will be fulfilled. But then what will happen? Then it will make me relax and then I will feel happy. So everything boils down to happiness. And what I have seen, and I'm sure every one of you experience that happiness is something you cannot buy. And other thing is, like happiness is something which comes from not taking, but from giving. If I ask you this question, do you like to do like this? Or do you like to do like this? What makes you happy? I'm sure the answer will be, I feel happy only when I'm doing this. Why I feel happy? Because somewhere I have this feeling, I have it. And when I have it, I have the abundance. This is how I am able to share with other people. So this is how I have seen in my own life that how when there is a happiness, then you become unlimited in many ways. You might have noticed when you are happy, actually you will eat less food because you are satisfied by being happy. But when you are you must just check yourself when you're bored or depressed or something, that is then you keep on opening your refrigerator. What is there to eat? What is there to eat? We end up eating a lot of food and ice cream and chips and all kind of things when we are not feeling really good about ourselves, or we are not genuinely happy. And I also find, like, even though we say my good job will make me happy, it's true. If I have more money, I will be happy. Very true. If I have a good relationship, yes, I will be happy. All those things will bring the happiness. But I find, supposing you got a promotion. Now you go to your best friend and tell them, oh, I got a promotion. Even though they will give you congratulations, they will be smiling with you, but deep inside you will notice they are also feeling down that you got it, I did not get it.
So actually you made other person subtly sad. So that means you cannot share your joy with other people. But supposing you are just going to your work, you are getting late, but you see somebody old person and that person is really struggling, and you just take your time, even though you are getting late, and then you make that person cross the street. You go to your work, you even say sorry, that I'm sorry, but you share your that situation you had. You will find everybody will be smiling with you. You will be able to share that happiness with everybody, and everybody will be inspired. So that is the genuine happiness. When you help somebody, when you are able to sacrifice something, when you are able to let go of your even your turn or anything which require little bit of experience. I just share with a small event in my life. See, I come from a very just down to earth, we can say, not very rich family. And early days, we did not have much money. I remember that in those days, when I was in 8th or 9th grade, that eating apple was like a luxury. And so I wanted to taste that apple. And I somehow got the money and I went to the shop and I bought one apple and I wanted to eat it. All of a sudden, I remember my 3 younger brothers. I say, they also don't know the taste of the apple. So I did not eat that apple. I brought it home. I called my 3 brothers and I cut the apple into 4 pieces and we all took 1 piece. I really want to tell you the joy I experienced of eating a quarter apple. It was much more tastier and giving that joy compared to if I had eaten it alone by myself. I am sure that you might have also experienced the same way in your life. Whenever you are able to share with other people, that makes you genuinely happy. And I never forget that even in my life. And what I find, anytime I am able to give something I have to other people who needs it, the joy I will experience, nobody can take it away. That becomes part of your life actually. So this is how, even when I went to America, so when I went to America, I did 2 things to myself. I promised myself. First of all, I did not want to go to America because I felt that I will get trapped into the lusters, of the American life, and I will just finish off my spiritual life, which was so dear to me. But somehow or another, my brother was there. He sponsored me. I went over there. I promised 2 things to myself. One is, I am not going there to change myself. I am going there to change them. Somehow or another, I had this feeling that I was proud of our Indian culture. And second thing was, I am going there to give something to them, not to take anything from them. So that was part of my life. Anytime I will get a job, I will always do something extra for which I will not get paid. Like I will take my own time and energy to do something extra. And this is how I was always getting those kind of recommendation. They will write in my letter of recommendation, Ram always goes above and beyond what we expect from him. He always do more than what is required of him. And that was my pride. And I used to feel so happy about it. Now, I want to share my experience about the World Trade Center, that when we talk about the crisis, no, it was a big crisis. Many times we talk about crisis management, and I feel you can never manage a crisis. Because if you can manage a crisis, it is not crisis anymore.
because you can handle it. Crisis is something which is above and beyond your comprehension, beyond your capacity, beyond your resources. And you don't manage that crisis, but you respond to it. And how you respond, you find somebody who's in need more than you need. So my experience of the World Trade Center was, I was on 64th floor of the first tower that was hit by the plane. You probably remember. It was September 11, 2001, when the terrorists had hijacked the plane, and they hit first building first, and then the second one. I was in the first one. And when the plane hit, the first reaction was, it is an earthquake. तो बिल्डिंग इधर गई, पर फिर वो खड़ी हो गई. तो तब लगा कि ये अर्थक्वेक तो नहीं हो सकता है, मे भी छोटा मोटा कोई प्लेन टकरा गया होगा. तो फिर हमने नीचे उतरना शुरू किया. थोड़े समय में आवाजें आई, सेकंड प्लेन. तो दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग को स्ट्राइक किया. तो फर्स्ट रिएक्शन वी हैड वाज, ये तो ना थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है, क्योंकि हु विल डेयर to attack America? It was like a pride of America, the World Trade Center. कौन करेगा? लगता है शायद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किसने की होगी. इट्स द बिगिनिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर. तब लोग सब घबराने लगे, जल्दी जल्दी निकले यहाँ से, चिल्लाने लगे अपने क्योंकि परिवार के साथ सब कोई रहना चाहता है ना जब कोई प्रॉब्लम होती है. तो पैनिक तब शुरू हुआ. और उसके बाद क्या हुआ, जब दूसरा जो टावर था टकराया बाद में था, हमारा टावर पहले टकराया था, लेकिन गिरना पहले वो शुरू हो गया. और जितना समय तक वो गिरता रहा, हमारा टावर बुरी तरह से शेक हो रहा था. नीचे से फर्श हिल रहा है, ऊपर से प्लास्टर गिर रहा है, वो जो इमरजेंसी लाइट फ्लिकर हो रही है, सायरन बज रहा है, प्लास्टर ये पाइपलाइन है एक दूसरे से, दे आर रैटलिंग विद ईच अदर. तो माना इट वाज सच ए हॉरर सीन. और उस समय लोग बड़े घबराने लगे. और फिर क्या हुआ, हमको मालूम पड़ा कि वो जो सारा मटेरियल गिरा दूसरे टावर का, उसके कारण से हमारी जो सीढ़ी थी वो ब्लॉक हो गई. तो हमको दूसरी सीढ़ी में जाना पड़ा. और दूसरी सीढ़ी में गए तो रश भी हो गया. और थोड़े समय के बाद बहुत तेजी से वहां पानी आने लगा, क्योंकि जो पाइपलाइन वगैरह थी वो टूट गई. स्प्रिंकलर सिस्टम होता है हाई राइज बिल्डिंग में, वाटर लाइन सब वो टूट गई. तो पानी इतना तेज हमारी सीढ़ियों में आ रहा था, इफ वी डोंट होल्ड ऑन टू द हैंड रेल वी विल फ्लश डाउन. तो हम अपने आप को होल्ड करते करते हम बाहर जैसे चल रहे हैं. तो फिर हमको मालूम पड़ा वो पानी के बहाव के कारण या कोई और स्ट्रक्चरल फेलियर के कारण हमारी दूसरे वाली सीढ़ी नीचे से टूट गई. तो हम वो भी सीढ़ी यूज नहीं कर सकते थे. आपने देखा होगा कोई भी हाई राइज बिल्डिंग होती ना, उसमें 2 एग्जिट स्टेयर्स होती हैं ज्यादातर, लेकिन वो बड़ा टावर था तो उसमें 3 थी. तो तीसरी जो लास्ट वाली सीढ़ी में जाने के लिए हमको एकदम अंधेरे कॉरिडोर में से गुजरना पड़ा. पानी हमारे ऊपर गिर रहा है, पानी हमारे पाँव के नीचे एड़ियों तक है, कपड़े भीगे हुए हैं. दीवार का सहारा लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन वो जो इमरजेंसी लाइट होती है ना, जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो कभी कभी वो फ्लिकर करती है. तो जब वो लाइट दिखाई देती थी तो दिखाई पड़ता था सारी इलेक्ट्रिकल वायर्स, कम्युनिकेशन वायर्स, दे वर हैंगिंग ऑन टॉप ऑफ अस. तो हम अपने आप को नीचे झुकाते हुए दीवार का सहारा लेकर अंधेरे में धीरे धीरे हम बाहर निकले सीढ़ी से. तो फिर हम तीसरी वहां पे गए और नीचे उतर आए. हमको निकले हुए सिर्फ 4-5 मिनट हुए थे, तो अचानक फील हुआ नीचे से जमीन हिल रही है. तो पीछे मुड़ के देखा, हमारा टावर भी नष्ट हो गया. हम उस टावर के इतना नजदीक थे, अगर वो टावर हमारी तरफ टॉपल हुआ होता हम उसके नीचे आ जाते. लेकिन आपने देखा था ना, ये हमारा जो यहाँ का नोएडा का भी टावर गिरा तो सीधा ट्विन टावर थे ना वो भी.
तो वो कैसे नीचे गिरे थे, हमारा टावर भी सीधा नीचे आया। तो लेकिन जो धूल से हमारे कपड़े वगैरह सब खराब हो गए, हम भाग के दूर निकल गए, हमको कुछ नहीं हुआ। तो तो कई लोग जो मेरे साथ थे वो मेरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। उसका एक ये कारण था कि वास्तव में मेरा बड़ा वोल्टेज सेंटर के साथ कनेक्शन भी था। मेरे को कुछ साल पहले मैंने वहां के सारा जो वोल्टेज सेंटर है ना, अगर आपको आइडिया दूं, वो 7 वोल्टेज सेंटर थे, 7 बिल्डिंग, 16 एकड़ का जैसे टब होता है ना, चारों तरफ उन्होंने 6 बेसमेंट फ्लोर का ना, इतना चारों तरफ से पानी को निकाल कर इतना बड़ा 6 बेसमेंट बनाई थी। उसके ऊपर 7 बिल्डिंग थी, 16 एकड़ का वो बेसमेंट फ्लोर थे, 6 इतना बड़ा था। तो मेरे को हायर किया था, वो 20 साल पुराना हो गया था। तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है, क्रैक आते हैं, डिस्कलरेशन हो जाती है, कुछ क्रोजन होना शुरू हो जाता है, रूफ खराब होने लग जाती है। तो वो सारों को इंस्पेक्ट करना और फिर उसके इंस्पेक्शन के प्रोसीजर बनाना, फिर रिपोर्टिंग का बनाना, फिर उसको कैसे सभी जगह इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ध्यान करके अल्टीमेटली उसको जो लूप को क्लोज करना। तो वो सारा प्रोग्राम हमने लिखा था। हम 5 इंजीनियर थे, आई वाज द टीम लीडर। मैंने तो बल्कि उनको ट्रेनिंग भी दिया था जो ये काम करने वाले थे। और मैं तो जो फसाद होता है ना 110 फ्लोर का, वहां भी रूफ से जंप करके वो जो विंडो क्लीनर होते हैं ना, उस स्कैफोल्ड पर 110 मंजिल ऊपर नीचे भी गया था, आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग। मन आई वाज वेरी मच कनेक्टेड विद इट। तो लोगों को विश्वास होता है। तो हमारा वहां पे एक मेडिटेशन सेंटर है 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैं अपने दोस्तों को फिर वहां लेकर आया, अपने जो को वर्कर्स थे उनको खाना खिलाया, थोड़ा मेडिटेशन कराया। रात को जब ट्रेन चलने लगी तो हम सब घरों को आ गए। लेकिन अगले दिन मेरे को न्यूज़पेपर, टेलीविजन, हर कोई मेरे को कॉल कर रहा था। वो कई चीजें पूछ रहे थे, लेकिन एक जो चीज वो पूछ रहे थे वो ये थी कि राम, यू वर 95 मिनट्स इन द टावर। हमको 95 मिनट्स लगे थे नीचे उतरने में, एंड यू केम आउट ओनली 4 or 5 मिनट्स बिफोर इट कोलैप्स्ड। यू वर सो क्लोज टू डेथ। तो वो नियर डेथ एक्सपीरियंस आपका क्या था, है ना, व्हेन यू फेल्ट मे बी यू विल डाई इनसाइड, वो के जो भय होता है वो कैसा था। तो एक्चुअली आई स्टार्टेड टू लुक बैक। आई वाज अमेज्ड टू फाइंड आउट actually I did not get scared even for a second. तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बट इट वॉज लुकिंग लाइक मिराकुलस। पर मैंने सोचा इसका कारण क्या है। इट्स नॉट दैट आई एम अ सुपरमैन और माचो काइंड ऑफ पर्सन, आई डोंट केयर, यू नो, हमारी बैकग्राउंड ऐसी, हम कभी किसी से पंगा नहीं लेते हैं, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते हैं फिजिकल। मेरे को तो है, कोई मेरे को कोई रास्ते में कोई गुस्सा भी थप्पड़ भी मार देगा, मैं कभी नहीं पूछूंगा आपने क्यों मारा है मेरे को, मैं चुप करके साइड से चला जाऊंगा। ऐसा हमारी नेचर है। और कहा इतने बड़े हादसे में भी मेरे को इतना भी डर नहीं आया। तो तब मैंने अपने आप को ना पूछना शुरू किया, मैं कि ये क्या कारण होगा। तो एक ही कारण बुद्धि में आता है, वो ये कि मैं दूसरों की मदद करने लग गया। क्योंकि मेरे को लगता था, मैं मेडिटेशन उस समय मैं 27 ईयर से कर रहा था, तो मेरे को लगता था अगर मैं भी दुनिया की तरह करूंगा तो मेरे और उनमें फर्क क्या होगा। क्योंकि बाकी लोग जल्दी जल्दी नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे ताकि घर जाएं, और मैं लोगों से धीरे धीरे चलते हुए उनसे बातचीत करता था। वो भी मेरे से बड़े खुश होते थे, कहते थे राम प्रे फॉर अस, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में प्रेयर की बहुत वैल्यू होती है। तो मैं कहता था अपने भगवान को, जिसको भी आप बिलीव करते हो, याद करो, सब ठीक हो जाएगा, हैव फेथ। तो इस तरह की बातें थी। लेकिन जब तो दूसरा टावर गिर गया ना, तब भी लोगों में दहशत होनी शुरू हो गई। तो क्या था, जब थोड़ी सी भी कोई हलचल होती थी, क्योंकि पूरा दूसरा टावर गिर गया था, पर इमीडिएटली तो सारा छोटा मोटा चीज चलती रहती है ना, डिस्टरबेंस। तो थोड़ी सी भी आवाज होती थी तो सब कांप जाते थे। और वहां पे जो लेडीज काम करने वाली थी, उनकी चीख निकल जाती। वो मैं पीछे उनको मुड़ के देखता था तो उनके चेहरे पर जो हॉरर नजर आता था ना मेरे को, तो मैं क्या कहता था, मैं उनको कहता था आप आगे आ जाओ। मैं खुद अपने आप को पीछे ले जाता था
उनको अपने आगे ले आता था। मैं कहता था हम सभी इकट्ठे हैं, इकट्ठे ही बाहर निकलेंगे, आप चिंता नहीं करो, जो होगा सब इकट्ठे ही इसको भुगतेंगे, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अभी देखो कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, मैं 2 कदम आगे था, अभी 2 कदम पीछे चला गया, इट्स नॉट ए बिग डील, राइट। पर उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा बाकी हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ है, हर किसी को होता है कि मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचूं, कोई किसी की केयर नहीं करेगा। और ये भाई हमको अपने आगे ला रहा है, अपनी जगह हमको दे रहा है और खुद पीछे हट रहा है। तो अगर हम मुसीबत में पड़ेंगे, ये भाई हमारी मदद करेगा। देखो होता ही है ना, एक विश्वास होता है। दे वर सो लविंग टू मी, दे वर सो हैप्पी विद मी, यहां तक के दे टोल्ड मी राम यू आर अवर एंजल, उन्होंने मेरे को फरिश्ता बोला। तो मेरे को बड़ी अंदर अंदर से हंसी आई। मैं कहा वाह, फरिश्ता बनना तो बहुत इजी हो गया है, 2 कदम पीछे जाओ और फरिश्ता बन जाओ। पर मैंने उसके बारे में बाद में सोचना शुरू किया। मैंने कहा मेरे को तो मन में बिल्कुल भी नहीं आया था कि मेरे को लगा ये ड्यूटी है, वो हमारी बहनों की तरह हैं लेडी, हमारी उनकी मदद करना मेरा फर्ज है, तो मैं तो अपना फर्ज ही निभा रहा हूं। पर उनके मन में कैसे आया, वो तो क्रिश्चियन लोग हैं, मेरे को जानते भी नहीं है ज्यादा, तो उनके मन में कैसे आया कि दे कॉल्ड मी एन एंजल। तो मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया, तब मेरे को एहसास हुआ कई बार जब हम एंजल्स की बात करते हैं ना, तब एंजल्स की बात करते हैं जिन्होंने कोई मिराकुलस काम किए होते हैं, बड़े बड़े काम किए होते हैं, फेमस होते हैं। लेकिन आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, तो क्या ये पॉसिबल है वो बड़े बड़े एंजल हों, मिराकुलस एंजल है, आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, आई कैन बिकम एन ऑर्डिनरी एंजल, मैं एक नन्हा सा फरिश्ता बन सकता हूं, आई कैन बिकम ए पार्टिकल एंजल, माइक्रो एंजल, छोटा सा तो बन जाता है ना, कहते पर काम मैं कर सकता हूं एंजल वाले, छोटे छोटे अच्छे काम। तो कहते हैं भी एंजल के लिए क्या कहते हैं, दे आर हेल्पर्स ऑफ गॉड, ऐसे ही कहते हैं ना। हमको कभी मुसीबत होती ना, हम भगवान को याद करते हैं ना, कहते हैं भगवान एंजल्स भेज देता है। तो इसका मतलब क्या है, एंजल्स करते क्या है कि दे अपीयर इन द टाइम ऑफ नीड, जहां कोई इम्पॉसिबल टास्क होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है रिजॉल्व नहीं हो रही होती है, या कोई ना कोई ऐसी कोई तकलीफ होती है, कोई इमरजेंसी होती है, दे अपीयर फ्रॉम नोवेयर, पहुंच जाते हैं किसी ना किसी तरह से, और वो सेल्फलेसली काम करते हैं, निस्वार्थ, और वो किसी को पता भी नहीं लगने देते कि दे आर एंजल्स। और जब काम पूरा होता है, चुपके से बिना किसी को बतलाए दे फ्लाई अवे, ऐसा होता है ना। और हल्के होके ना, दे ऑलवेज एंजॉयिंग देमसेल्फ, फ्लाइंग विद जॉय, कहते हैं ना, विंग्स ऑफ ज़ील एंड एंथुसियाज्म। तो तब मतलब कि वही चीज है। तो मेरे को अभी अंदर से फील होता है कि मैं आप सभी से भी ये पूछना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड, हिम्मत है तो बोलना आप, क्योंकि मुझे पता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी बहुत माने जाने होते हैं लोग, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। तो जो ज्वाइन भी करते हैं ना, उनके अंदर में एक कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, कुछ ना कुछ बड़ा करें, दान पुण्य करें, होता है कि नहीं होता है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि 4-5 चीजें हैं, दिल हो तो आप बताना या मुस्कुरा देना, तो मेरे को आइडिया लग जाएगा, ठीक है, या हाथ खड़े कर देना, जो भी है, जो वीडियो पर है। मुसीबत के समय या जहां कोई इम्पॉसिबल टास्क है, या जहां आपकी बहुत जरूरत है, तो आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं तो हाथ खड़ा करो, कर सकते हैं, हाँ देखो कई कर रहे हैं। अच्छा, निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं, कर सकते हो तो हाथ खड़ा करो। तो कईयों को लग रहा है कि पता नहीं है करें कि नहीं कर रहे, कई हमको लोग दे डोंट टेक अस फॉर गारंटेड, ऐसा तो नहीं है, मुस्लिम कर सकते हैं ना, निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं, गुप्त रह सकते हैं, कैन यू रिमेन इनकॉग्निटो, नेम एंड फेम की बात ना हो, और रिटर्न में कुछ ना लेना, ये कर सकते हैं, कर सकते, हाँ अभी मैंने हाथ खड़े देख रहा हूं, और खुशी में हल्के होकर नाचते रहेंगे, उठते रहेंगे खुशी में, ये कर सकते हैं,
कर सकते हैं तो आज आप सभी भी एंजल्स बन गए हो। बड़े एंजल नहीं, छोटे छोटे एंजल्स। तो मंजूर है सभी को, है एंजल बनकर अपनी जीवन जीना। बड़े एंजल नहीं, छोटे छोटे माइक्रो एंजल। माना जहां भी आप जाओ लोग कहेंगे सलूशन आ गया, जहां आप जाओ मजा आ गया, जहां जाओ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हो सकता है कि नहीं हो सकता है ऐसा? तो देखो, वी कैन बिकम लाइक ए मोबाइल एंजल। जहां जाए कहते ये आ गया, सलूशन आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा भय सब खत्म हो गया। तो हम ही हेल्पर बन जाते हैं ना, तो वो भगवान के हेल्पर हम बन जाएंगे। तो देखो, इसी आधार से मेरे को हमेशा होता था पर्सनली, जो मैं क्या देखता था, हमारे ऑफिस के भी 10 लोग मारे गए थे क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपना वेट करेंगे जब तक इंस्ट्रक्शन आई, लेकिन हमने डिसाइड किया जल्दी निकल पड़ेंगे। तो मैं देखता था उनकी वो रह गए अंदर, तो एक सर्वाइवल गिल्ट होती है। तो हमेशा लगता था कि मेरी जान क्यों बची है। तो मैंने क्या अपने आप में एक संकल्प किया कि अगर मैं भी समझ लूं कि मेरे दोस्तों के साथ मेरी भी जान चली गई है, पर अगर मेरी जान ये बची है, माना मेरी कोई एक्सटेंशन मिली है, अगर मैं समझ लूं कि ये मेरी अपनी लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ दोस्तों के साथ खत्म हो गई है, पर अगर मैं इस जिंदगी को अपने लिए नहीं यूं, दूसरों के लिए लगा दूं, दूसरों की मदद करने के लिए लगा दूं, फिर भगवान भी जस्टिफाई कर सकेगा ना कि इसकी जान क्यों बची, क्योंकि इसको कुछ सेवा करनी थी दुनिया की। तो मेरा तब से ना एक नेचर बन गया है, मैं कहीं भी जाता हूं ना, हर जगह कुछ ना कुछ लोगों की मदद करना। क्योंकि इस समय अगर हम देखेंगे, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, हर कोई परेशान है। People are really sad at present time. They're empty. Everybody is looking for help. कई बार छोटी छोटी हेल्प, मुस्कुरा के देख लेना, किसी को हेलो कर देना, किसी से भूल हो जाए इसको माफ कर देना, अपने से भूल हो जाए अपने आप को माफ कर देना। ये छोटे छोटे हम कर्म करके ना, वी कैन लिव द लाइफ ऑफ एंजल्स। तो ना ऐसा मेरे को अंदर में जीवन में होता था। उसी से हमने एक प्रोग्राम भी शुरू किया, 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस। तो वो कैसे, हम कहते हैं हम सारी दुनिया में एक तरफ एटॉमिक एक्सप्लोजन की बात हो रही है और दूसरी तरफ हम कहते हैं ना, हम एक्सप्लोजन की बात करते हैं, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोजन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। क्योंकि हैप्पीनेस भी कंटेजियस है, जैसे फ्लू फैलता है, हैप्पीनेस भी ऐसे फैलती है। तो अगर एक टेररिस्ट एक गलत काम करके सारी दुनिया को हिला देता है, व्हाई नॉट अवर गुड एक्शन डू द सेम थिंग, व्हाई नॉट इट जनरेट्स द एक्सप्लोजन ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस। तो जैसे एटम बम में एक्सपोनेंशियल इंपैक्ट होता है, उसमें भी एक जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है ना, जब एटम टकराते हैं, एक्स्ट्रा एटम टर्न इनटू न्यूक्लियर एनर्जी, उसका फार्मूला भी E = mc² होता है। ऐसा ही हमारे में भी जो हम एक्स्ट्रा करेंगे ना, वो एक्स्ट्रा एक्सपोनेंशियल उसका इंपैक्ट होगा। और देयर आर 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, इफ इन द नेम ऑफ 7 बिलियन, इफ collectively we can perform 7 billion good acts, maybe that will trigger the chain reaction of goodness and happiness in the world, and there will be explosion of goodness and happiness. Happiness आप देखेंगे, पैसा किसी को आप देंगे ना, 100 रुपए में से 50 रुपए या 50 बचेंगे। आप खुश हैं, किसी को उदास को देख के आप उसको हैप्पीनेस देंगे, आपकी हैप्पीनेस कम हो गई, बढ़ेगी कि उतनी रहेगी? सब कहेंगे बढ़ेगी। तो देखो, यही एक स्पिरिचुअल लॉ है और स्पिरिचुअल एनर्जी का, कि हैप्पीनेस इंक्रीजेस व्हेन यू गिव, मनी रिड्यूसेस व्हेन यू गिव। तो हैप्पीनेस ऐसे करते करते वी कैन ब्रिंग द सुनामी ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। तो मेरे को आपसे यही कहना